بہت دور جہاں وقت ایک دلکش اور پرسکون دھن کی طرح گزرتا تھا، ایک نہایت کامیاب تاجر اپنے خاندان کے ساتھ ایک عالیشان حویلی میں رہتا تھا۔ اس کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ تمام بچے ہی دیکھنے میں جاذب نظر تھے، مگر سب سے چھوٹی بیٹی، جس کا نام زرین تھا، اپنی مثال آپ تھی۔ زرین صرف چہرے سے ہی نہیں بلکہ اپنی روح سے بھی بے حد خوبصورت تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک ایسی راحت تھی جو کسی بھی دکھی دل کا بوجھ ہلکا کر سکتی تھی۔ وہ گھر کے ہر فرد، یہاں تک کہ خادموں کا بھی بے حد خیال رکھتی تھی۔ اس کے دل میں ہر ایک کے لیے ہمدردی اور محبت کا ایک نہ ختم ہونے والا سمندر تھا۔ اس کے برعکس زرین کی دونوں بڑی بہنیں غرور اور تکبر میں ڈوبی تھیں۔ وہ اپنی دولت پر ناز کرتی تھیں، قیمتی لباس پہنتی اور صرف اونچے طبقے کے لوگوں سے ملنا پسند کرتی تھیں۔ وہ زرین کے نرم مزاج اور سادہ پن کا اکثر مذاق اڑاتی، مگر زرین کبھی پلٹ کر انہیں تلخ جواب نہ دیتی۔ اس کا ماننا تھا کہ محبت اور اخلاق ہی انسان کا اصل زیور ہے۔ زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی کہ اچانک قسمت نے ایک انتہائی کٹھن موڑ لیا۔ تاجر کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا، اس کے جہاز سمندر کے طوفانوں کی نذر ہو گئے اور اس کی تمام دولت ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل گئی۔ اس عالیشان طرز زندگی کی جگہ اب صرف ایک چھوٹا سا لیکن خوبصورت مکان رہ گیا تھا جو شہر کی رونقوں سے میلوں دور ایک سنسان علاقے میں تھا۔ تاجر نے آنکھوں میں آنسو بھر کر اپنے بچوں کو یہ دلخراش خبر دی۔ دونوں بڑی بہنیں تو یہ سن کر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ ہمارے قیمتی کپڑے، ہماری آسائشیں سب ختم ہو گئی، ہم اس طرح نہیں جی سکتے۔ بابا جان، جب تک ہم سب ساتھ ہیں کوئی مشکل ہمیں توڑ نہیں سکتی۔ اس چھوٹے لیکن خوبصورت گھر میں منتقل ہونے کے بعد زندگی بے حد سخت ہو گئی۔ تاجر اور اس کے بیٹے کھیتوں میں سخت مشقت کرتے، جبکہ زرین منہ اندھیرے جاگ جاتی۔ وہ گھر کا سارا کام کرتی، لکڑیاں کاٹتی، کھانا بناتی اور گھر کو اپنے محبت بھرے ہاتھوں سے سنوارتی۔ اس کے ہاتھ جو کبھی مخمل جیسے نرم تھے، اب محنت کی وجہ سے کچھ کھردرے ہو چکے تھے، مگر اس کے چہرے کی مسکراہٹ میں کوئی کمی نہ آئی۔ وہ کام کے دوران میٹھی آواز میں گنگناتی، جس سے اس کے تھکے ہارے باپ اور بھائیوں کی دن بھر کی تھکن اتر جاتی۔ بڑی بہنیں دن بھر بیٹھی اپنی پرانی دولت کو یاد کر کے روتی رہتی اور زرین کو تانے دیتی، مگر وہ ان کی باتوں کو نظر انداز کر کے سب کی خدمت کرتی رہی۔ پھر ایک رات زرین کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے اس کی تقدیر کے دھاگے ہمیشہ کے لیے بدل دیے۔ اس ایک رات جب زرین سوئی تو اس نے ایک نہایت پراسرار اور دلکش خواب دیکھا۔ خواب میں وہ ایک گھنے، گہرے اور خاموش جنگل میں چل رہی تھی۔ وہاں کی ہوا میں ایک طلسماتی سی خنکی تھی اور فضا میں ایک انوکھی کشش محسوس ہو رہی تھی جو اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک بے حد پرشکو مگر ویران محل کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ محل کے دروازے خود بخود کھل گئے، جیسے وہ مدتوں سے صرف اسی کے منتظر ہوں۔ محل کے اندر گہرا سکوت طاری تھا، مگر وہ سکوت ڈرانے والا نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک نامعلوم سا درد چھپا ہوا تھا۔ زرین چلتی ہوئی محل کے پچھلے حصے میں ایک وسیع و عریض باغ میں پہنچی۔ وہاں ہر طرف دھند پھیلی ہوئی تھی، مگر اس دھند کے بیچوں بیچ ایک چٹان پر ایک نہایت نایاب اور خوبصورت پھول کھلا ہوا تھا۔ اس پھول کی پتیاں گہرے سرخ رنگ کی تھیں اور ان میں سے ایک ہلکی پرکشش روشنی پھوٹ رہی تھی، جیسے وہ کوئی عام پھول نہیں بلکہ کسی دھڑکتے ہوئے دل کا عکس ہو۔ زرین کے قدم خود بخود اس پھول کی طرف بڑھنے لگے۔ جوں جوں وہ قریب جا رہی تھی، اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے بہت غور سے دیکھ رہا ہے۔ کسی کی گہری بھاری سانسوں کی آواز اور ایک اندیکھا سایہ اسے اپنے آس پاس محسوس ہونے لگا۔ وہ سایہ خوفناک نہیں تھا، بلکہ اس کی موجودگی میں ایک ایسی تنہائی اور اداسی تھی جس نے زرین کے دل کو اندر تک چھو لیا۔ زرین نے اپنا ہاتھ اس چمکتے ہوئے سرخ پھول کو چھونے کے لیے آگے بڑھایا ہی تھا کہ اچانک کسی دور بجنے والی گھنٹی کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ زرین بستر پر اٹھ بیٹھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر اسے کوئی خوف نہیں تھا۔ اس کے ذہن پر بس وہ پھول، وہ ویران محل اور وہ اندیکھا تنہا سایہ نقش ہو کر رہ گیا تھا۔ یہ خواب اتنا حقیقی تھا کہ زرین کئی پہر تک اسی کے سحر میں گم رہی۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ تاجر کو ایک پیغام ملا جس سے سب میں امید کی کرن دوڑ گئی۔ تاجر کا ایک جہاز جسے تباہ شدہ سمجھ لیا گیا تھا، خیر و عافیت سے بندرگاہ پر پہنچ چکا تھا اور اس میں موجود سامان بکنے والا تھا۔ یہ سن کر دونوں بڑی بہنیں خوشی سے پاگل ہو گئیں۔ ان کے اندر کا لالچ پھر سے جاگ اٹھا۔ جب تاجر شہر جانے کے لیے تیار ہوا تو انہوں نے فرمائشوں کے انبار لگا دیے کہ
किसी को कीमती रेशमी लिबास चाहिए था तो किसी को हीरों के हार और जेवरात। बाबा मेरे लिए एक निहायत महंगा और ट्रेंडी लिबास जरूर लाइएगा, और मेरे लिए भी सबसे खूबसूरत और कीमती। मेरी प्यारी बच्ची जरीन, तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, बताओ तुम्हारे लिए क्या लाऊं? जरीन चंद लम्हे खामोश रही। बाबा आपका बेहिफाजत लौट आना ही मेरे लिए सबसे कीमती तोहफा है, मगर चूंकि आप पूछ रहे हैं तो तुम्हारे मुझे बस एक फूल चाहिए, एक ऐसा नायाब और गहरा सुर्ख फूल जिसकी पत्तियों में जिंदगी की चमक हो। अगर आपको कहीं ऐसा फूल नजर आए तो बस वही मेरे लिए ताजिर ले ने आइएगा। मोहब्बत से जरीन के सर पर हाथ फेरा, अपनी बेटियों से वादा किया और अपना घोड़ा लेकर शहर की जानिब इस लंबे और अनजाने सफर पर निकल पड़ा। शाम के साए गहरे हो रहे थे। जरीन दरवाजे पर खड़ी अपने बाप को दूर धुंधलके में गायब होते देख रही थी। उसके सीने में दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई अनदेखा एहसास उसे बता रहा हो कि उसे एक सुर्ख फूल की ख्वाहिश अब इन सब की जिंदगियां हमेशा के लिए बदलने वाली थी। शहर पहुंचकर ताजिर की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं। उसे मालूम हुआ कि उसके सामान पर पुराने कर्ज खाहों ने कब्जा कर लिया है और तवील कानूनी उलझनों के बाद उसके हाथ एक सिक्का भी नहीं आया। वो जिस कदर खुशी और उम्मीद लेकर घर से निकला था, अब उससे कहीं ज्यादा बोझिल कदमों और टूटे हुए दिल के साथ वापस लौट रहा था। उसे अपनी बड़ी बेटियों की फरमाइशें याद आ रही थीं और उसका दिल कट रहा था कि वो उन्हें जाकर क्या बताएगा। वापसी का सफर इंतहाई कठिन साबित हुआ। ताजिर अभी आधे रास्ते में ही था कि मौसम ने अचानक एक हैबतनाक शक्ल इख्तियार कर ली। आसमान पर स्याह बादल छा गए, शदीद बर्फबारी शुरू हो गई और हवाएं इतनी तंदु तेज थीं कि उसे 2 बार घोड़े की पीठ से गिरा चुकी थीं। रात का अंधेरा फैल चुका था और दूर से भूखे भेड़ियों के रोने की दिल दहला देने वाली आवाजें आ रही थीं। सर्दी और भूख से निढाल ताजिर को लगने लगा कि आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात है। वो अपना रास्ता मुकम्मल तौर पर भटक चुका था कि अचानक घने और खामोश दरख्तों के पार उसे एक मध्यम सी पुरकशिश रोशनी दिखाई दी। उसने अपने थके हुए घोड़े का रुख इस रोशनी की तरफ मोड़ दिया। कुछ दूर चलने के बाद वो एक अजीमुशान मगर इंतहाई खामोश महल के सामने खड़ा था। ये महल हूबहू वैसा ही था जैसा जरीन ने अपने ख्वाब में देखा था। उसकी दीवारों से एक गहरी, सहरंगेज और खामोश तन्हाई छलक रही थी। ताजिर हैरत से आगे बढ़ा। महल के बैरूनी दरवाजे किसी के छुए बगैर खुद ब खुद खुल गए, जैसे वो मुद्दतों से किसी मेहमान के मुंतजिर हों। वो अंदर दाखिल हुआ तो एक वसीओ अरीज हॉल में पहुंचा। वहां आतिशदान में आग दहक रही थी और एक बड़ी मेज पर निहायत लजीज खानों से भरा दस्तरख्वान सजा था, मगर वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। ताजिर ने देर तक किसी का इंतजार किया, लेकिन जब कोई न आया और उसकी भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने खाना खाया और वहीं एक पुरतैश कमरे में जाकर गहरी नींद सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो खिड़की से सुनहरी धूप अंदर आ रही थी। उसके लिए एक निहायत कीमती लिबास रखा गया था। ताजिर ने उस अनदेखे मेहरबान मेजबान का दिल से शुक्रिया अदा किया, कपड़े बदले और अपने घोड़े की तलाश में महल के पिछले हिस्से में निकल आया। जैसे ही वो बाहर आया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बाहर सर्दी और बर्फ का नामो निशान तक न था, बल्कि एक निहायत खूबसूरत और दिलकश बाग था। वो चलते चलते बाग के उस हिस्से में पहुंच गया जहां धुंध का एक हल्का सा हाला बना हुआ था, और वहीं एक चट्टान के करीब उसे वो फूल नजर आया, एक गहरा मखमली सुर्ख फूल जिसकी पत्तियों से एक निहायत पुरकशिश और मध्यम सी रोशनी फूट रही थी। ताजिर का दिल बेइख्तियार धड़क उठा। ये बिल्कुल वही नायाब फूल था जिसकी फरमाइश जर्रीन ने की थी। बेटी की मोहब्बत में मगलूब होकर ताजिर ने आगे बढ़कर वो सुर्ख फूल उसकी टहनी से तोड़ लिया। फूल के टूटते ही जमीन हिलने लगी। एक दिल दहला देने वाली दहाड़ ने पूरे बाग को हिला कर रख दिया। ताजिर खौफ से कांपता हुआ पीछे हटा। उसके सामने एक इंतहाई हैबतनाक और कवील जुस्सा वजूद खड़ा था। वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि एक ऐसा वजूद था जिस पर किसी गहरी तारीक बद्दुआ का साया था। वो काशिफ था, जिसके चेहरे से गुस्सा कम और एक गहरा सदियों पुराना दर्द ज्यादा झलक रहा था। मैंने तुम्हें तूफान से बचाया, अपने घर में पनाह दी, और तुमने मेरी सबसे कीमती चीज चुरा ली। काशिफ की आवाज में एक गरज थी जो ताजिर की रूह तक को लरजा रही थी।
तुम ने इस फूल को तोड़ा है जो मेरी जिंदगी का वाहिद सुकून था। अब इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकाना होगी। ताजिर खौफ के मारे घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते मुझे हुए माफ हाथ कर जोड़ दे, मेरा दिए। इरादा चोरी करने का हरगिज नहीं था। मैंने ये नायाब फूल अपनी सबसे छोटी बेटी जरीन के लिए तोड़ा था। मैं एक मजबूर बाप हूँ। मैं तुम्हें मोहल्लत देता हूँ। वापस जाओ। अगर तुम्हारी बेटी अपनी मर्जी से तुम्हारी जगह इस महल में आने को तैयार हो तो तुम आजाद हो, लेकिन अगर वो ना आई तो 1 महीने के अंदर तुम्हें वापस आना होगा, वरना मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। जाओ और इस कमरे में रखा सोने का संदूक भी ले जाओ ताकि तुम्हारी बेटियां गुर्बत ताजिर में ना मरे। जानता था कि वो अपनी जरीन को कभी इस हैबतनाक वजूद के हवाले नहीं करेगा, लेकिन उसने मोहलत कबूल कर ली ताकि वो आखिरी बार अपने बच्चों को देख सके। वो भारी दिल, आंसुओं और उस सुर्ख फूल के साथ घर की जानिब रवाना हुआ। चंद घंटों बाद जब वो घर पहुंचा तो उसके बच्चे उसे देखकर खुशी से दौड़ पड़े, मगर ताजिर के चेहरे पर मौत जैसी जर्दी थी। बाबा, हमारे तोहफे कहाँ हैं? आप ना लिबास लाए ना कीमती जेवरात। हमने इतनी फरमाइशें की थी, क्या सब भूल गए थे आप? ये लो मेरी बच्ची, तुम्हारा फूल। बाबा जान, आप रो क्यों रहे हैं? जैसे ही जरीन ने उस फूल को छुआ, उसके दिल में वही ख्वाब, वही महल और उस साए की तन्हाई एक बार फिर जिंदा हो गई। ताजिर फूट फूट कर रोने लगा। तुम्हारा फूल आ गया है, लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं कि इस एक फूल ने तुम्हारे बदकिस्मत बाप की जान की क्या कीमत मांगी है। ताजिर ने सिसकियां लेते हुए वो सारी दर्दनाक कहानी सुना डाली। बड़ी बहनों ने फौरन रोना धोना शुरू कर दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है जरीन। तुम्हारी अनोखी फरमाइश ने बाबा को मुसीबत में डाल दिया। हमने कुछ मांगा था तो तुम्हें भी अजीब सा फूल ही मांगना था। अब देखो क्या हो गया। जरीन की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक गहरा और पुरअज़म सुकून था। उसने वो सुर्ख फूल अपने सीने से लगा लिया, जिसकी हल्की सी गर्मी उसे एक अनदेखे रिश्ते का एहसास दिला रही थी। उसने निहायत धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा, बाबा जान को कुछ नहीं होगा। जिस फूल की फरमाइश मैंने की, उसकी कीमत भी मैं ही अदा करूंगी। बाबा जान की जगह इस महल में मैं जाऊंगी। बाप के लाख रोने और बहनों के तानों के बावजूद जरीन का फैसला अटल था। उसने अपने बूढ़े बाप के आंसू पूछे, उन्हें गले लगाया और उस सुर्ख फूल को अपने सीने से लगाकर उस अनजाने सफर पर निकल पड़ी। घोड़ा जैसे खुद ही रास्ता जानता था और कुछ ही पहर में वो इस अजीमुशान मगर सुनसान महल के दरवाजे पर पहुंच गई। जरीन ने जैसे ही पहला कदम अंदर रखा, फिजा में एक नर्म झोंका सा महसूस हुआ। हवा में एक गहरी सहरंगीज उदासी थी। वो चलते चलते उसी बड़े हॉल में पहुंची जहां उसके वालिद ने पनाह ली थी। वहां एक छोटी सी मेज पर 2 लोगों के लिए खाना सजा था, मगर आसपास कोई मौजूद नहीं था। अचानक हॉल के दूसरे कोने से भारी और गूंजदार कदमों की आवाज उभरी। जरीन के कदम वहीं जम गए। अंधेरे में से एक हैबतनाक और कवीउल जुस्सा साया बाहर आया। ये काशिफ था। मगर जब जरीन की नजरें उसकी आंखों से टकराईं तो वो चौंक गईं। उन आंखों में दरिंदगी नहीं थी, बल्कि सदियों की थकन, एक ना खत्म होने वाला कर्ब और एक ऐसी तन्हाई थी जो पत्थर दिल को भी मोम कर दे। क्या तुम अपनी मर्जी से आई हो? हाँ, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और मैं आपके इस फूल की हिफाजत करूंगी। काशिफ ने कुछ ना कहा, बस एक गहरी आह भरी और मुड़कर अंधेरे में गायब हो गया। दिन गुजरने लगे। जरीन को इस महल में किसी कैदी की तरह नहीं, बल्कि एक मलका की तरह रखा गया। उसे हर सहूलत मुयस्सर थी, मगर महल की वो गहरी खामोशी उसे काटती थी। काशिफ दिन भर उसके सामने नहीं आता था। वो सिर्फ शाम के वक्त दस्तरखान पर उसके साथ बैठता। वो दोनों खामोशी से खाना खाते, लेकिन उनके दरमियान एक अनकही सी गुफ्तगू चलती रहती। जरीन ने महसूस किया कि काशिफ का रूप जितना डरावना है, उसकी रूह उतनी ही जख्मी और मासूम है। वो उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता था। सर्दी में उसके कमरे का अलाव रोशन करवा देता और उसकी पसंदीदा किताबें उसके सरहाने रखवा देता। आहिस्ता आहिस्ता जरीन के दिल से उसका खौफ बिल्कुल खत्म हो गया और उसकी जगह एक गहरी हमदर्दी और एक नामालूम सी कशिश ने ले ली। फिर एक शाम जब बाहर शदीद बारिश हो रही थी और बादल गरज रहे थे,
زرین محل کی راہداریوں میں چلتی ہوئی ایک ایسے کمرے تک جا پہنچی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اندر داخل ہوئی تو دیکھا